اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے, روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے, روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں. کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب, قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں, آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا, اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا. آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224, آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن, کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48, تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایسے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی, چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں, آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے, اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں, ڈیفائن کر چکے ہیں. تو اب اس ایشو کو, جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے, تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. ایک بات واضح کر دیں, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے, بائی افلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی, تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا, جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہیں. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے, خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر, اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5. جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین. کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا. یہ الٹا بات کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 8 تاریخ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا. یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI. یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا, منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے, وہ تو پیپلز پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے, لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے, ہم جا کر مخالفت کریں گے. پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف, اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں. کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت, اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں, اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اس کے علاوہ ان کی چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. اس سب کچھ کے باوجود ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی, ریاست نہیں چل سکتی. اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں, اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا, پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا, پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا, اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح جبر اور تشدد کر رہے ہیں, اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں, ہم ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں, خدارا آگ سے کھیلنا بند کریں, پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں. پاکستان میں 1960s میں اگر 70s میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا, آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے. آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں, جو کہ آپ نے ماضی میں 16 مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے 24 بلین ڈالر آپ کے ریزرو تھے, آج آپ کے مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر ہیں. جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین 6.1% جی ڈی پی تھی, آج آپ کا 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو ہو جائے گی. جب آپ کا ڈالر 170-178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, آج آپ کا 320 پہ نہیں مل رہا. یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں. آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے, عوام امپورٹنٹ ہے. اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% پہ پہنچا دی ہے, اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی, یہ 78% پہ جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے. اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں, پوری پولیس, پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں. لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا, آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا, اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے. اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں, لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں, اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے سٹیک ہولڈرز سوچیں, تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں, اور اس ملک کی خاطر, عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال ہے کر لیں, کافی ہو گیا. ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے, وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے, سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا جو ود ان 90 ڈیز الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے, اور ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے, اور توہین عدالت بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے. میں صرف ایک پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتا ہوں جو آپ کا کوسچن ہے. دیکھیں, صدر اسٹیٹ کا سربراہ ہے, ریاست کا سربراہ ہے, وہ فیڈریشن کا حصہ ہے, وہ پارلیمان کا حصہ ہے, اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو اپولیٹیکل ہے, جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ سربراہ کی حیثیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی. اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے, خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے. وہاں ان کا صدر سیریمونیل ہوتا ہے,
हमारे सदर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां भी है। एक इलेक्शन कमिश्नर का अपने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, मैं आपके साथ मुलाकात के लिए नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ सियासत को एक साइड पे रख लें, ये ईवान की तौहीन है। वो एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे थे, भला इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता, इलेक्शन कमीशन ज़रूर कहता सर हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि हम आईन और क़ानून पे चलते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब ये इख्तियार हमारा है। बर मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 में होल्ड कर चुकी है कि असम्बली 3 सूरतों में डिज़ॉल्व होती है। उसमें मौजूदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रिव्यू भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, उस सूरत में भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख़ का तयन करे और इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अगर जो लेटर उन्होंने लिखा है ये बरतानिया और अमेरिका में किसी मुल्क में हुआ होता तो वो वहाँ यहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू। थैंक यू जी। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। थैंक यू। देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फ़ंड्स रेज़ ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फ़ंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की कर रहे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आइन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आइनी तौर पर बताना है कि आप मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू। तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने यक तरफ़ा फ़ैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फ़हरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिक़ा हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बग़ैर
आपने यक तरफा फैसला कर दिया और सज़ा सुना दी और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी हो गई, और आपने जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाजे तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कब मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में आप आ रहा हूँ, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है? कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज़ आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज़ आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज़ आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को ज़िंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कमर दिलशाद साहब, कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़िया-उल हक ने कहा था 90 डेज़ में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए। किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूँकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूँ, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असम्बली डिसॉल्व न करते, बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व कर दे, खा वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका ख़ात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिल के इन्होंने साजिश प्लान की थी
ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने का फ़ैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI। ये अलग बात है कि मैं बबांगे दुहल आपको कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बिल्कुल वो दोगला रहा, मुनाफिकाना पॉलिसी थी कि जब आप सेंसस के इशू पे खुद कहते रहे, वो तो पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते रहे कि जनाब हमने पुराने मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मुराद अली शाह की अपनी बात और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे कराएंगे, हम जाकर मुखालफत करेंगे। फिर वहाँ मुखालफत क्यों नहीं की? आपने एक बारूदी सुरंग खुद बिछा कर गए हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़, और फिर आज आप कहते हैं 90 डेज़ में इलेक्शन करा दें। कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, अगर उनको ये एहसास हो गया है तो हम जमहूरी ताकतों को वेलकम करेंगे कि हमारे इस मुतालबे के साथ खड़े हों। इसके बावजूद कि आज हमारे चेयरमैन जेल में हैं, इसके बावजूद हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनको कारोबार बंद किए हुए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अलावा उनकी चार दीवारी की पामाली हो रही है। इस सब कुछ के बावजूद हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आइन के अंदर दी हुई शेड्यूल के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये रियासती की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाएंगी, रियासत नहीं चल सकती। और फिर इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में जो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, इसको कम करें, इसलिए कि इलेक्शन की अगर शफाफियत पे उंगली उठ गई तो आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की रियासत का नुकसान होगा, और रियासत का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए कि आज पाकिस्तान की 80% आवाम इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह जबर और तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बावजूद आज इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। हम इस मुल्क की बका चाहते हैं, हम अपने इदारों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा आग से खेलना बंद करें, पाकिस्तान की तारीख से सीखें। पाकिस्तान में 1960s में अगर 70s में अगर आपने सीखा होता तो हमारा मुल्क दो लख्त ना हुआ होता, आज हम इकट्ठे बैठे होते। आप किसी की दुश्मनी और किसी एक बंदे की अना के ख़िलाफ़ एक बंदे की दुश्मनी में इतना आगे ना चले जाएं, जो कि आपने माजी में 16 महीने ये एडवेंचर करके देख लिया कि जिस वक्त आपके 24 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व थे, आज आपके मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर हैं। जिस वक्त आपकी चलता हुआ मुल्क बेहतरीन 6.1% GDP थी, आज आपका 0.3% है और आगे नेगेटिव हो जाएगी। जब आपका डॉलर 170-178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, आज आपका 320 पे नहीं मिल रहा। ये मुल्क को गैर यकीनी कैफियत से निकालें। आपके लिए रियासत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, अवाम इम्पॉर्टेंट है। और अगर जिस तरह की बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरह महंगाई 12% से उठा करके आपने 38% में पहुंचा दी है, और ये आगे 38 तक नहीं रहेगी, ये 78% पर जाएगी। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, लोगों को आपने किस चक्रों में डाल दिया है। और आज केयर टेकर जो 100 कार्ड बैठे हुए हैं, क्या ये केयर टेकर या ये निगरान गैर जानबदार कहलाने के काबिल हैं कि जो सारे टारगेट कर रहे हैं, पूरी पुलिस, पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, किसी तरीके से इमरान को और PTI को हम क्रश कर सकें। लेकिन लोगों के दिलों से मोहब्बतें कैसे निकालोगे? आपने वो रेफरेंडम देख लिया पिशावर का, आपने वो रेफरेंडम हवेलियां का देख लिया, उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे। इस सब कुछ के बावजूद अगर लोग इमरान से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग आपकी इन हरकतों के से नफ़रत करने लग गए हैं, और नफ़रत का इजहार वोट के टाइम पे होगा। इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारी PDM की जमातें ये नहीं चाहती कि इलेक्शन वक्त पे हो और उनको शिकस्त फाश हो। हम ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर खुदारा सारे स्टेक होल्डर्स सोचें, तमाम जमहूरी ताकतें भी अपने आप को रिकन्सिडर करें और इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर अपने रवैयों को ठीक करें। थैंक यू सो मच। कोई ज़रूरी कुछ सवाल है, कर लें, काफ़ी हो गया।
हम तो पहले दिन से चीख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं है, वो इन पीडीएम की जमातों के साथ मिला हुआ है। जब इमरान खान साहब ये कहते थे तो हमें कहा जाता था कि आप तौहीन इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। तो भाई आज जब आइन बालातर है, सुप्रीम कोर्ट ये अपने फैसले में लिख के दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डीरेल किया जो विद इन 90 डेज इलेक्शन नहीं कराए पंजाब और केपी के, और साथ आइन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद आपके सामने जो ख़त लिखा है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है और तौहीन अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है। मैं सिर्फ एक पॉइंट इस पे ऐड करता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। देखिए, सदर स्टेट का सरबराह है, रियासत का सरबराह है, वो फेडरेशन का हिस्सा है, वो पार्लिमान का हिस्सा है, और पार्लिमान के हिस्से होने के साथ साथ वो वाहिद पर्सन है जो अपॉलिटिकल है, जिस सियासी जुमात के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता, और वो सरबराह की हैसियत से जब माना जाता है तो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है आइनी। और हमारे आइन में बाकी आइनों से बड़ा फ़र्क है, ख़ासकर इंडिया से बड़ा फ़र्क है। वहाँ उनका सदर सेरेमोनियल होता है, हमारे सदर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारियाँ भी है। एक इलेक्शन कमिश्नर का अपने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, मैं आपके साथ मुलाकात के लिए नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ सियासत को एक साइड पे रख लें, ये ईवान की तौहीन है। वो एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे थे, भला इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता, इलेक्शन कमीशन ज़रूर कहता सर हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि हम आइन और क़ानून पे चलते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब ये इख्तियार हमारा है, पर मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 में होल्ड कर चुकी है कि असम्बली 3 सूरतों में डिज़ॉल्व होती है। उसमें मौजूदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रिव्यू भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, उस सूरत में भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख़ का तयन करे और इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अगर जो लेटर उन्होंने लिखा है ये बरतानिया और अमेरिका में किसी मुल्क में हुआ होता तो वो वहाँ यहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू है। थैंक यू जी। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह, सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। थैंक यू। देखें, इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फ़ंड्स रेज़ ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फ़ंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की कर रहे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आइन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आइनी तौर पर बताना है कि आप मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू।